Assalamualaikum. I am Yasmin Imtiaz, student of MSc Final in Organic Chemistry. The topic of my presentation is analysis of copper plus 2 in copper sulfate solution by iodometry. I would like to give a special thanks to my all respected teachers for your guidance and support. Professor Dr. Nasreen Fatma, Dr. Shazia Nisar, Dr. Asad Khan Tanoli, and Dr. Sadaf Iqbal. First we talk what is iodometry. Iodometry सिंपली एक रिडॉक्स टाइट्रेशन है जिसमें हमारा एनालाइट जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसको हम ऐड करते हैं एक्सेस पोटेशियम आयोडाइड में ताकि वो आयोडीन प्रोड्यूस कर सके, और जो आयोडीन प्रोड्यूस होती है उसे हम डायरेक्टली टाइट्रेट करते हैं स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट के साथ। इस प्रोसेस को हम आयोडोमेट्री कहते हैं। आयोडोमेट्री एक डायरेक्ट टाइट्रेशन नहीं है क्योंकि ये टाइट्रेशन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहले हमारा जो एनालाइट है जो कि अननोन होता है वो आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है और आयोडाइड ऑक्सीडाइज होकर आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। देन आयोडीन को जब फर्दर रिएक्ट करवाते हैं स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट के साथ तो स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट रिड्यूस हो जाता है सोडियम टेट्राथायोनेट में। pH शुड बी लेस दैन 8। अगर ज़्यादा बेसिक pH होगा तो आयोडीन डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन शो करता है, और अगर ज़्यादा एसिडिक pH होगा तो स्टार्च इंडिकेटर हाइड्रोलाइज हो जाएगा। Iodometric determination of copper plus 2 in copper sulfate solution. Introduction. Analysis of copper plus 2 in a sample solution can be carried out by volumetric analysis, also known as titrimetric analysis, which involves iodometric redox reaction or iodometric oxidation reduction reaction. For this purpose, a known volume of sample solution is treated with sodium carbonate solution, then bluish-white precipitates of copper carbonate. The bluish-white precipitates are then treated with dilute acetic acid until precipitates dissolve because of the formation of copper acetate, and brisk effervescence of carbon dioxide gas evolves, which expels the dissolved oxygen gas out from the sample solution, and clear bluish solution appear in the flask. The resulting blue solution is treated with potassium iodide. In this titration, copper plus 2 behaving as oxidizing agent reacts with potassium iodide behaving as reducing agent in the presence of acetic acid, where copper plus 2 is reduced into copper plus 1 and potassium iodide is oxidized into iodine. As a result, the solution turns dark brown color. The liberated iodine gas is then treated against standard sodium thiosulfate solution using starch as an indicator to find out the volume of standard sodium thiosulfate solution consumed against iodine gas produced. When we start procedure, we know sodium thiosulfate is secondary standard, so first standardize sodium thiosulfate with potassium dichromate. Standardization of sodium thiosulfate solution. 0.01 molar standard potassium dichromate and 0.05 molar sodium thiosulfate solution were made and sodium thiosulfate was standardized. सो हमारे पास सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन इस कलर का होगा जबकि पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन इस कलर का होगा। अगर हमारे पास सॉल्यूशन लेस कंसनट्रेटेड दिन के लेस कम कंसनट्रेशन का होगा तो सॉल्यूशन येलो कलर का नज़र आएगा, और ज़्यादा कंसनट्रेशन होगा तो सॉल्यूशन डार्क ऑरेंज कलर का नज़र आएगा। इन आयोडीन फ्लास्क 10.0 ml of potassium dichromate solution, 1 gram potassium iodide and 2 gram sodium bicarbonate were added with 75 ml distilled water and was shaken until salt was dissolved. Then 6 ml concentrated HCl were added slowly while rotating for mixing. This flask was kept in dark. इस फ्लास्क को हम डार्क में रख देंगे 5 मिनट के लिए क्योंकि आयोडीन जो है वो लाइट सेंसिटिव होती है। It was titrated against sodium thiosulfate solution until color was changed. हमारे पास आयोडीन सॉल्यूशन डार्क ब्राउन कलर का होता है। जब हम इसे टाइट्रेट करते हैं सोडियम थायोसल्फेट के साथ तो हमारे पास सॉल्यूशन इस तरह का हो जाता है पेल येलो।
पेल येलो सॉल्यूशन में जब हम स्टार्च इंडिकेटर को ऐड करते हैं 1 और 2 ml, तो ब्लू ब्लैक कलर का सॉल्यूशन हमें अपने फ्लास्क में नज़र आ रहा होता है इस तरह का। देन अगेन हम इसे टाइट्रेट करते हैं सोडियम थायोसल्फेट के साथ, तो हमारा जो एंड पॉइंट होता है उसमें हमारे पास कलरलेस सॉल्यूशन नज़र आता है, और यहाँ पे हम अपनी प्यूरिटी रीडिंग को नोट कर लेंगे। Analysis of sample solution copper+2. In a beaker with 5 ml dilute sulfuric acid, sample was prepared by weighing, then transferred into 50 ml volumetric flask. Beaker was washed and flask was filled with distilled water up to the mark. जब हम सैम्पल बनाएंगे तो हमारे सैम्पल का कलर इस तरह का होगा, सॉल्यूशन बना हुआ। 10 ml सैम्पल लेंगे पाइपेट की मदद से कॉनिकल फ्लास्क में, और उसमें 5% सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन जैसे ही ऐड करेंगे तो हमारे पास कॉपर कार्बोनेट के ब्लूइश वाइट प्रेसिपिटेट्स हमें नज़र आएंगे फ्लास्क में, इस तरह के ब्लूइश वाइट प्रेसिपिटेट्स। द सॉल्यूशन वाज एसिडिफाइड विद डाइल्यूट एसिटिक एसिड ड्रॉप वाइज until PPT was dissolved. जैसे ही हम इसमें एसिटिक एसिड डालेंगे तो हमारे पास जो ब्लूइश वाइट प्रेसिपिटेट्स है वो डिज़ोल्व हो जाएंगे और फ्लास्क में एक क्लियर ब्लू कलर का सॉल्यूशन हमें नज़र आएगा। देन potassium iodide and distilled water was added and it was kept in dark for 5 minutes. Then it was titrated against standard sodium thiosulfate. Then pale yellow color was observed. तो जब हम इसे पोटेशियम आयोडाइड और डिस्टिल्ड वाटर ऐड कर देंगे और इसे 5 मिनट के लिए डार्क में रख देंगे, और जब इसे टाइट्रेट करेंगे सोडियम थायोसल्फेट के साथ तो हमें पेल येलो कलर का इस तरह का सॉल्यूशन नज़र आएगा। और जैसे हम इसमें स्टार्च इंडिकेटर ऐड करेंगे हमें इस तरह का ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन नज़र आएगा। जब हम इसे फर्दर टाइट्रेट करेंगे सोडियम थायोसल्फेट के साथ तो ये कलर डिसअपेयर हो जाएगा और वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स हमें नज़र आएंगे जो कि क्यूप्रस आयोडाइड के होंगे। कैलकुलेशंस, वेट ऑफ स्टैंडर्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट, अमाउंट निकालने के लिए इस अमाउंट का फॉर्मूला है मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000। यहाँ से हम अमाउंट निकाल लेंगे क्योंकि मोलैरिटी भी पता है, मोलर मास भी पता है, वॉल्यूम भी पता है। मोलैरिटी ऑफ स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट, मोलैरिटी मालूम करने के लिए मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ से हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की मोलैरिटी को मालूम कर लेंगे। Standardization of sodium thiosulfate solution. 1000 ml of standard potassium dichromate solution contain a mole of potassium dichromate. 10 ml में हमने लिया था, 10 ml हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया, तो 10 ml में हम मालूम कर लेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट कितने मोल हैं, 20 मोल हैं। यहाँ पे हम मोल रेशियो यूज़ करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट और सोडियम थायोसल्फेट, इसमें मोल रेशियो है 1:6 का, तो हम बी मोल को जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो हमारे पास सी मोल ऑफ सोडियम थायोसल्फेट आ जाएंगे। x ml ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन कंटेन्स सी मोल ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। x यहाँ पे हम अपनी प्यूरिटी रीडिंग को रखेंगे और 1000 ml में मालूम करना है, हम 1000 ml में मालूम कर लेंगे। एनालिसिस ऑफ copper+2. 1000 ml of standard potassium 1000 ml of sodium thiosulfate solution contains d mole of सोडियम थायोसल्फेट। y ml ऑफ स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन कंटेन्स ई मोल ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। y यहाँ पे हम प्यूरिटी रीडिंग को रखेंगे अपनी, इसमें मोल रेशियो लगाएंगे 1:1 का मोल रेशियो है, तो हमारे पास f मोल ऑफ कॉपर के आ जाएंगे। 10 ml ऑफ सैम्पल सॉल्यूशन कंटेन्स f मोल ऑफ कॉपर। 10 ml हमने लिया था, हम 25 ले तो हम यहाँ पे 25 लिख देते हैं। 250 ml में हमने अपना सैम्पल बनाया था, 250 ml में हम कॉपर के मोल मालूम करेंगे जो कि g के बराबर है। वेट ऑफ कॉपर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। यहाँ पे जो भी मोल है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके मोलर मास से, हमारे पास वेट ऑफ कॉपर यहाँ पर आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ कॉपर के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है वेट ऑफ copper+2 डिवाइड बाय वेट ऑफ सैम्पल। जो वेट हमने कभी कैलकुलेट किया वो हम यहाँ रखेंगे, जो हम पहले सैंपल का वे करके लाए थे वो हम इधर रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह हमारे पास कॉपर की परसेंटेज आ जाएगी कि 250 ml में हमारे पास कॉपर की कितनी परसेंटेज है। एंड लास्ट में क्या लिखेंगे, रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ copper+2 इन द सैम्पल सॉल्यूशन इज़ फाउंड टू बी Z%। थैंक यू।